Hello guys, hello everyone. I hope all of you doing well and fine. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. So guys, we are going through the IUCAM 2021-22 solutions and so far हमने 4 questions कर लिए हैं and currently today in this video we are going to do the question number 5. Okay. Alright, I hope all of you are ready. This question is based on geometry and quite an interesting one and actually an easy one as well. Okay, so let's see. Okay guys, let's read the question carefully and then solve it. So guys, it says in parallelogram ABCD, the longer side is twice the shorter side. All right. And let X, Y, Z, W be the quadrilateral formed by the internal bisectors of the angles A, B, C, and D. Okay. If the area of X, Y, Z, W is 10, find the area of ABCD. So this is quite an interesting one question, guys. Let's see. Okay. मैं एक parallelogram add कर देता हूँ इसमें. All right. Something like this. Okay. So guys, this is a parallelogram. Let's name it A, B, C and D. तो guys क्या बोला जा रहा है? We have to draw the angle bisectors, right? So guys इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात है. अगर आपने एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ना, आई एम जस्ट शोइंग यू, लेट्स से इट इज इंटरसेक्टिंग ए बी एट सम पॉइंट, राइट? तो गाइज देखो ये एंगल कितना होगा, लेट्स से सम एंगल थीटा, देन दिस इज आल्सो गोइंग टू बी थीटा, एंगल बाइसेक्टर है, राइट? नाउ गाइज लुक एट दिस केयरफुली, सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम, AB is parallel to CD, right? So if this angle is theta, wouldn't we say that this angle is also theta, that the angle bisector makes with the AB line? ये angle भी theta हो जाएगा ना due to alternate angles. Let me name it. This is actually going to be your X point. So you'll see. So guys, can I say angle? You can say it here. Angle DXA is equal to angle XDC. है ना? होगा ऐसा? Right? The reason is alternate angles. Clear? So guys, now you can see here, that means in this triangle ADX, the two angles are equal. Wouldn't that imply AD is equal to AX? है ना? ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं हो जाएंगी, AD और AX, सामने की साइड्स थीटा थीटा है, राइट? ठीक है. So guys, since we know that AB is twice of AD and let's say the AD side is A, just for example, let's say this side is A, then AX is also A, है ना? ठीक है. तो गाइज इसका मतलब AX क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया ना. X is the midpoint of AB, angle bisector. So because then guys we can prove कि जो एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर होगा, that is going to intersect AB at X only. Why? अब अगर गाइज आपने इसको सम एंगल अल्फा लेट किया, then this angle is also alpha, angle bisector है, and this angle is also going to be alpha, isn't it? क्योंकि again alternate angles. So by that logic, BC also will be equal to XB. ये दोनों भी equal हो जाएंगे. And this is A, so this is also A. So you see here कि अगर AB की साइड डबल होगी as given in the question, if one side है ना, the longer side is twice the shorter side, then आप देख सकते हो कि एंगल बाइसेक्टर जो आपने बनाए वो कहाँ पे मीट कर रहे हैं? At the midpoint of the opposite side, or you can say at the midpoint of the longer side. Understood? So guys, now let us draw the other two sides as well. A का एंगल बाइसेक्टर भी CD के मिड पॉइंट पे आएगा और B का एंगल बाइसेक्टर भी CD के मिड पॉइंट पे. तो guys, now look at this. This is X, Y, this point is Z, and this is going to be W. Understood? Clear है guys? ओके ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी कि आगे यहाँ पे आपके कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट विल लाई ऑन द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ओनली, बिकॉज द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट. अंडरस्टूड गाइस? नाउ लेट अस सॉल्व फर्दर. तो गाइस हमें क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू का एरिया कितना है? 10 है. वन मोर थिंग दैट यू कैन सी गाइस, व्हाट इज अल्फा प्लस थीटा? सी गाइस, अल्फा और थीटा के एडजेसेंट एंगल्स है, सो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी अल्फा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स तो बराबर होते हैं ना पैरेललोग्राम में. तो गाइस कैन आई राइट 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इज 180 डिग्री, है ना? एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है पैरेललोग्राम में. सो गाइस दिस विल लीड अस टू से दैट थीटा प्लस अल्फा इज 90, है ना? थीटा प्लस अल्फा 90 है. सो ड्यू टू दैट गाइस, व्हाट इज एंगल एक्स वाई जेड और वाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू? दिस इज गोइंग टू बी 90,
है ना, x पे जो एंगल बनेगा अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना गाइस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंगली एटलीस्ट अ रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि ईच एंगल इज गोइंग टू बी 90 नाउ, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा 90 है, टोटल एंगल 180 था, सो दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल, है ना, एटलीस्ट 90 हो जाएगा, ऑल्दो इट विल नॉट हेल्प अस मच बट यस जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। तो गाइस देखो एक्स वाई जेड डब्ल्यू का एरिया, अब इंटरेस्टिंग बात देखो गाइस, अब अगर मैंने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, है ना, लेट अस से आई जॉइन जेड एंड एक्स, लेट्स जॉइन देम राइट। तो गाइस डू यू सी, पहली बात एक्स वाई जेड डब्ल्यू का एरिया 10 है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ एक्स डब्ल्यू जेड, रेक्टेंगल है वो तो डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करेगा, दोनों का एरिया 5 हो जाएगा, राइट गाइस, द दो two parts of the rectangle are going to be 90 area 5 each, है ना, I hope this is clear. So guys now actually see this carefully, look at this diagram, जो ABCD आपका पैरेललोग्राम था, आपने AB और CD का मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया, है ना, we know this property that this is also going to be parallel to AD, है ना, this is also going to be parallel to AD of course, क्लियर है ये तो, क्योंकि मिड पॉइंट्स को अगर आपने ज्वाइन किया किसी भी एक साइड के ऊपर, मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हो कि ये पैरेलल लाइन आ जाएगी। सो एक्चुअली यू सी कि आपने पैरेललोग्राम के दो हाफ्स कर दिए, इक्वल हाफ्स, है ना, इक्वल एरियाज। नाउ लुक एट दिस गाइस, ये एरिया अगर 5 है, देन बेसिकली AXZD is a parallelogram and we know AXZD is rather a rhombus. Can I say this? देखो AXZD is a rhombus, ऐसा बोल सकते हैं। Since it is a rhombus now guys, ये जो चार एरियाज होंगे सब इक्वल होंगे, the diagonals divide the rhombus into 4 equal areas, right? ऐसा ही रहता है बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एज वेल, है ना, तो चारों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। सो यू कैन गेट हियर गाइस व्हाट इज द एरिया ऑफ AXZD, दैट इज गोइंग टू बी 4 times the area of XZW, है ना, which is 5, so 4 into 5 that is 20. And now guys, since AXZD is, we can write it as half of area of ABCD, that is 20, so that will lead us to write that area of parallelogram ABCD is going to be 40 square units. Got it? तो गाइस ये एरिया कितना आ जाएगा, आंसर इसका आना चाहिए इस क्वेश्चन का, दैट यू मार्क वुड बी 40 होना पड़ेगा गाइस। बेसिकली आपने गाइस देखो जो डायग्राम बना हुआ है, यू कैन सी 8 स्मॉल ट्राइंगल्स, ऑल द 8 ट्राइंगल्स विल हैव सेम एरिया विच इज 5, है ना, सो 8 into 5 से भी आप 40 निकाल सकते हो, ठीक है। आई जस्ट टुक सम अदर वे, ओके, understood guys, there could be another ways as well, there are other ways to solve this question as well. तो guys this would be, I would say कि the easiest way, जिसमें आप डायग्राम के ऊपर मोरलेस काफी चीजें आप कर पाओगे, बट जस्ट अगर आपने ये रियलाइज कर लिया कि जो एंगल बाइसेक्टर है दे विल इंटरसेक्ट ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गर साइड, तो इससे आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, ऑलराइट गाइज, so guys please, if you guys understood this question and like the solution, please like our channel and subscribe to our channel as well. Okay, so looking forward to see you more on this channel. Okay, we'll try to keep coming up with videos like this. All right, thank you guys, we'll see you in the next video. Till then, all the best, bye bye, take care.